Hello everybody, welcome to your channel Learn with Smile by Disha. Now you see, in the previous video we had learned how to solve fractions, that is word problem on fractions part 1, and I had told that in the next video, okay, means today's video, we are going to learn how to solve little more hard fractions. So today we are going to learn word problems on fractions part 2. Okay, so we are going to solve in this video problems based on fractions a little harder. So let us see the first problem. First problem means question number 1. After reading 5 by 8 of a book, 168 pages were left. So how many pages were there in all in the book? Means that you see anybody, a person, means let me take a boy. A boy read 5 by 8 of a book. And after reading this 5 by 8 of a book, 168 pages were left. Means after reading this 5 by 8 also, more 168 pages were left. So how many pages were there in total in the book? Means we need to find out how many pages were there in the book. And we don't know what are that. So today we are going to, now we are going to find out. How? Now you see. Here it is told 5 by 8 of a book already have been written and 168 pages are left. So let us first find out how many pages are left in fraction. Then we can proceed with our further, means we can further proceed. So remember, I had already told you in the previous video that in solving problems on fraction, the whole quantity, the whole, that is anything, amount and quantity and quality, all, that is taken as 1. So right now we don't know how many pages are there in the book. So let us assume it as 1. So to find out in fraction the pages left, we will minus 1 minus 5 by 8. This we are going to do. Then next what are we going to do? Here only one denominator is here. So let me take here 8 only. Now we know that in a whole number where there is no denominator, we always assume that 1 is its denominator. So 8 divided by 1 gives us 8 and 8 into 1 8. So 8 minus. Then 8 by 8 1, 1 into 5 5. So this is 8 minus 5 by 8. 8 minus 5 is equal to what? 3, and 8 is 8. So hence right now we got this part. That is this 3 by 8 part of a book pages are left. Means 3 by 8 of a book are left. 3 by 8 of a book are left. Means pages are left. Okay. So this is what we have got. Next we are going to find out the total pages in the book. So next what are we going to do? Now we have already known that 3 by 8 of a book are left. So let us assume 3 means we need to assume the total into some amount. So let me assume this total amount as x. Okay, I will assume the whole book's pages as x. So that's why 3 by 8 of the total amount or x is equal to 168. मतलब यहाँ देखिए, यहाँ हुआ क्या है, 3 by 8 of a total book कितने pages were left? कितने था? 168. तो total book ढूंढने के लिए हम जो ऑफ ऑपरेशन यूज करेंगे, कैसे देखते हैं? तो हमारा मतलब 3 by 8 ऑफ द टोटल बुक है 168 पेजेस. तो हमारा टोटल बुक में पेजेस कितने हैं? ये तो सिर्फ पेजेस लेफ्ट है. ओके, ये वर सिर्फ दिस पेजेस है लेफ्ट, लेकिन टोटल कितने हैं? तो देयरफॉर एक्स क्या होगा? देयरफॉर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? 168 इंटू, हम तो जानते हैं हमें सिर्फ इसका 3 by 8 का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा. 3 by 8 रेसिप्रोकल इज 8 by 3. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. ओके, तो यहाँ 3 by 8 ऑफ तो आपको पता है ये इंटू है, तो इसीलिए मैंने एक बार में लिख दिया. अगर आप चाहे तो और एक स्टेप ऐड कर सकते हैं, दैट 3 by 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 168. तो या x इज इक्वल टू 168 इंटू 8 by 3. तो आंसर क्या होगा? अब देखते हैं कि ये 168 डिविजिबल है या नहीं 3 के साथ. 168 अगर हम मीन्स हाउ टू फाइंड आउट अ नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर और नॉट. तो हमें 3 को ढूंढना है, मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. और ढूंढने के लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं? वी नीड टू ऐड, एंड इफ द रिजल्ट वी गेट इज डिविजिबल बाय 3, then hence the number we get is divisible by 3. So 1 plus 6 is 7, 7 plus 8 is 15, and 15 is divisible by 3, hence 168 is also divisible by 3.
अगर हम ये 3 से मीन्स माइनस करें तो मीन्स इफ वी रिड्यूस इट देन 3 गिव्स अस 1 एंड हियर इफ वी कट 168/3 कितना देगा हमें 56. 56 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना 448. और यहाँ डिनोमिनेटर 1 है तो इसीलिए मैं यहाँ 1 नहीं लिख रही. तो इसीलिए टोटल पेजेस कितने हुए 448 पेजेस. 448 पेजेस टोटल है उस बुक में. सो हेंस द आंसर वी गेट आर 448 पेजेस आर देयर इन द बुक. ठीक है. सो ये हुआ हमारा आंसर. सो यहाँ हमें पता चला कि हम कैसे ढूंढ सकते हैं अगर ऐसे टाइप ऑफ सिमिलर मीन्स क्वेश्चन आए हैं. और एक चीज अभी तो हमें मिल गया टोटल पेजेस कितने हैं, लेकिन अगर हमें पूछा जाता कि आफ्टर रीडिंग मतलब ये जो 5/8 दिया गया है ये टोटल में होल नंबर में कितना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. इसके दो मेथड्स है. फर्स्ट तो हमें ढूंढने के लिए फर्स्ट मेथड जो है हम कर सकते हैं 448 माइनस 168. अगर माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 280. ये हमारा आंसर मिल गया. सेकेंड मेथड ये है. सेकेंड मेथड क्या है 448 इंटू 5/8. अगर हम ऐसे करते हैं 5/8 जो है फ्रैक्शन को हम यहाँ लिख लेंगे और 4/8 को टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और ये तो कटेंगे. तो इफ वी रिड्यूस इट ये मिलेगा 1 और ये मिलेगा हमें 56. 56 इंटू 5 कितना हुआ 280. तो हेंस आंसर सेम आ रहे हैं. मतलब कि इतना 280 पेजेस वेर मीन्स ऑलरेडी रेड. तो 168 पेजेस वेर लेफ्ट. तो टोटल पेजेस कितने बुक में ये हमारा क्वेश्चन. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. 2-3 of the students in a class are boys and the rest are 17 girls. So how many boys are there in the class? Okay. Now देखिए यहाँ देखा गया है कि 2/3 मीन्स टोटल 3 parts of the students में से 2/3 of the students in a class are boys and the rest are 17 girls. So how many boys are there in the class and what is the total strength of the school? तो मैं पहले टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल ढूंढती हूँ देन आई विल प्रोसीड विद बॉयज. ये करने से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोज थोड़ा सा लॉन्ग मेथड यूज करने के सिवाय. सो टू फाइंड आउट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल पहले हमें देखना होगा कि 17 गर्ल्स फ्रैक्शन में कितने थे. ओके. सो पहले हम लिख लेते हैं कितने पार्ट ऑफ बॉयज हैं. पार्ट ऑफ बॉयज कितने हैं. पार्ट ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 2/3 एंड पार्ट ऑफ गर्ल्स we need to find out. So what will we do? part of girls. अभी हमें क्या करना पड़ेगा टोटल ले लेते हैं 1. let us assume 1 minus 2/3 हमें बताएगा कितना हुआ हमारा फ्रैक्शन. 1 3 minus 3/3 1 into 2. So that is equal to 1/3. Okay. So part of girls is equal to 1/3 and 1/3 मतलब 17 गर्ल्स. 1/3 मतलब 17 गर्ल्स. ओके. सो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में मिल गया. नेक्स्ट व्हाट आर वी गोइंग टू डू. नेक्स्ट हमें टोटल स्ट्रेंथ तो ढूंढना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे. नाउ नेक्स्ट व्हाट आर वी गोइंग टू सी इज मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हियर व्हाट वी हैव इज 1/3 इंटू टोटल स्ट्रेंथ. अब हमें टोटल स्ट्रेंथ तो पता नहीं है तो इसलिए मैं x ले रही हूँ. 1/3 इंटू एक्स और टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कितने इज इक्वल टू 17. ओके. 1/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 17. सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल कितना होगा. देखिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल की 1/3 दैट इज 17 1/3 इज इक्वल टू 17 गर्ल्स. तो टोटली बॉयज ढूंढने के लिए भी हमें पहले टोटल स्ट्रेंथ ढूंढ लेते हैं. तो इसके लिए 1/3 मीन्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 17. सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 17 इंटू 3/1. अगेन हम यहाँ लिख सकते हैं कि या हमें मीन 17 इंटू 3/1 हो गया रेसिप्रोकल राइट. 1/3 का 3/1 सो 1/3 3/1 हो गया. सो 17 इंटू 3/1 हो गया. अब कुछ तो कट नहीं हो रहा तो एक बार में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 इंटू 3. 17 इंटू 3 कितना है 51. सो हेंस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल हमें मिल गया कितना 51. व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज इक्वल टू 51. अब बॉयज कितना है. अभी देखिए हम इजीली बॉयज फाइंड आउट कर सकते हैं. बिना टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल मतलब 51 माइनस 17 गर्ल्स. इफ वी 51 माइनस 17 कितना देता है हमें बॉयज
34. So how many boys are there in the class? 34 boys are there in the class. तो hence हमें आंसर ऐसे मिल गया. Okay? So ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था एंड वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड सिमिलर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस. मतलब ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इट वाज इजी. So thank you for watching, and if you liked the video then hit the like button. If you are new and you have not subscribed to our channel, then please subscribe our channel. And if you have any doubt or query, then you can comment us in the comment box. And also to look out for our new upcoming videos, you can hit the bell icon. And also share this video with your friends, your closer ones and relatives. Okay, thank you for watching.